Okay, so hello students, welcome to this lecture. So in this lecture, we will continue our discussion on physics solutions from Master Cadre 2022 exam. Okay, so let's start discussion on the remaining questions. But before moving ahead, just make one small correction that in the previous lecture, in question number 3, we have discussed about the average VRMS एंड वी मोस्ट प्रोबेबल. जो 2D का क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें हमने 3D का फॉर्मूला भी एक लिखा था, उसमें हमने इस पाई को गलती से मिस कर दिया था. दैट इज 8 kT अपॉन पाई एम अंडर द रूट. दैट इज द करेक्ट वन. तो प्लीज इसको करेक्ट करेंगे. दैट इज नॉट सिंपली 8 kT बाई एम, इट इज 8 kT बाई पाई एम. ओके, सो ये एवरेज भी है, बाकी ऑल फाइन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. The question is from solid state physics. Monochromatic X-rays of wavelength 1 angstrom are incident on a simple cubic crystal. The first order Bragg reflection from 311 plane occurs at an angle of 30 degree from the plane. The lattice parameter of crystal in angstrom is. Lattice parameter calculate करना है. Very easy question, direct question from the formula. Okay, first order Bragg reflection is from 311. तो यहाँ पे HKL are 311 and the wavelength is given as 1 angstrom and theta is given as 30 degree. So Bragg's law से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? n lambda is equal to 2d sin theta. 2d sin theta and the relation of d is nothing but a over h square plus k square plus l square. Okay, so now here HKL are 311, so it will be a divided by 9 plus 1 plus 1 and d is nothing but a by root 11. Okay, now first order है तो n की वैल्यू 1 है. लैम्डा is given as 10 raised power minus 10 meter into 2d. d is what? a by root 11 into sin theta, that is sin 30 degree. हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, that is the lattice parameter. So it will be 10 raised power minus 10 is equal to 2 by root 11 into a and sin 30 is 1 by 2. So 2 से 2 चला जाएगा. a will be equal to root 11 और एंगस्ट्रॉम में ही पूछा है तो इसको एंगस्ट्रॉम में ही रख लीजिए. 10 raised power minus 10 एंगस्ट्रॉम ही रह जाएगा. So answer is root 11 angstrom. That is option number D. So option D is correct out of the above options. Okay, so this question is from the solid state physics, very basic, from the Bragg's law. जो पहला डिस्कशन हम करते हैं, so that is the Bragg reflection and lambda is equal to 2d sin theta. Next question is unit of atomic polarizability. Unit of atomic polarizability. देखो होता क्या है, पोलराइजेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू अल्फा ई. डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू अल्फा ई. ये हम जब पोलराइजेशन पढ़ते हैं वहां पे डिस्कस करते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई. सो हेयर अल्फा इज द अटोमिक पोलराइजेबिलिटी. Alpha is known as the atomic polarizability. So we have to find out the unit of this. So in magnitude, you know, P is equal to alpha into E. तो अल्फा की यूनिट चाहिए हमें, तो P is nothing but Q into D. अगर डाइपोल मोमेंट है तो Q into D एंड अल्फा into E. अब देखो यहां पर अल्फा की यूनिट हमें किस टर्म में निकालनी है ये डिपेंड करता है. ठीक है, अल्फा को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब के रूप में भी लिखा जाता है. अब चूंकि ऑप्शन ऐसे गिवन है कि फेराड में हमें गिवन है 3 ऑप्शंस, कुलाम मीटर में गिवन है, तो हमें चार्ज में के बारे में सोचना है और फेराड में दिया हुआ है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस के रोल के बारे में सोचना है. ठीक है, तभी हम सही आंसर पे पहुंच पाएंगे. तो इसलिए इट विल बी रिटन एज अल्फा इज गिवन बाई क्यू डी ओवर ई. इस ई का मतलब सिंपली मैग्नीट्यूड हो गया. तो इट इज क्यू डी
और ई को हम लिखेंगे दैट इज वी बाई डी, क्योंकि हमें जाना है फेराड की तरफ। तो फेराड की तरफ जाने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को पोटेंशियल की तरफ लेके जाएं, और Q इज इक्वल टू सी वी से V को हम C की तरफ लेके जाएं, राइट। सो अल्फा इज नथिंग बट Q डी डी ओवर V। V को भी हम वोल्ट में नहीं रखना चाहते क्योंकि वोल्ट में कुछ गिवन नहीं है, तो इट इज V इज इक्वल टू Q बाई सी। V इज इक्वल टू Q बाई सी। सो C ऊपर चला जाएगा, Q से Q चला जाएगा, कैपेसिटेंस की फेराड and distance square, that is meter square. Answer will be farad meter square. Okay, ये आपकी यूनिट होगी। ओके, तो देखो यूनिट किसी भी सेंस में गिवन हो सकती थी, वो ई के रूप में भी यहां लिख सकते थे, वी के रूप में भी लिख सकते थे, उन्होंने पसंद किया कि सी के रूप में ला के आंसर दिया जाए फाइनली। तो इसलिए फेराड में आपका ऑप्शन आया फेराड मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन A is the correct answer. Okay. Let's move ahead. This question is very important. Okay. The elementary particle cascade 0 is placed in the baryon decuplate shown below at. आपको एक बेरियन डेक्यूप्लेट बनाई हुई है और वहां पे 3-4 मिसिंग पॉइंट है P Q R S, और आपसे पूछा कैस्केड कहाँ रखा जाएगा। देखो इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बेरियन डेक्यूप्लेट बनती कैसे है पहले वो समझते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और स्ट्रेननेस में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दी हुई है उस हिसाब से उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ना सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। आगे कभी और पार्टिकल भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस बार सिर्फ कैस्केड से बच गए तो आगे नहीं पूछा जाएगा। बेरियन डेक्यूप्लेट ऑक्टेट वो सब हम पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, तो वहां पे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक ट्रिक के थ्रू देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहां बैठा होता है और वहां से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आपको ऐसा याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एंड इट इज द स्ट्रेंजनेस। वैसे तो इट शुड बी शिफ्टेड टू द ओरिजिन, बट एनीवे जैसे यहां पे दिया हुआ है बस उसी को समझते हैं। सो हेयर इज डेल्टा प्लस प्लस, ओके। इसको आप थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना लेना। ओके नाउ सी, ओके इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना लेना जैसे डायग्राम में बनी हुई है। तो हेयर इज डेल्टा प्लस प्लस और ये पॉइंट्स मिसिंग है। पहले देखो बेरियन डेक्यूप्लेट बनती कैसे है। सो सबसे ऊपर स्ट्रेंजनेस S इक्वल टू 0, S इक्वल टू -1, S इक्वल टू -2, S इक्वल टू -3 में डिफाइन होती है। देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा 0 होगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा। अब इन लाइंस को पकड़ के चलो, देखो इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, तो इस पे सारे पॉजिटिव चार्ज ही आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्मा प्लस, और यहाँ इस लाइन पे देखो सभी का चार्ज 0 आएगा, तो हेयर इट विल बी सिग्मा 0 एंड हेयर इट विल बी सिग्मा माइनस, इस लाइन पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद कैस्केड दो होते हैं, एक माइनस एक प्लस,
तो माइनस आएगा इस पे और एक जीरो, सॉरी माइनस और जीरो होते हैं, और एक जीरो आएगा इस लाइन पे। देखो जीरो 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 प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, इस लाइन पे भी माइनस ही आता है, एंड दैट इज ओमेगा माइनस। ये पार्टिकल्स यहां पे होते हैं बैरियन डेक्यूप्लेट में, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द बैरियन डेक्यूप्लेट। ऐसे ही हम ऑक्टेट पढ़ते हैं, उस ऑक्टेट में भी पार्टिकल्स को रखते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जितना क्वेश्चन है उतना ही देखेंगे। तो बैरियन डेक्यूप्लेट को ऐसे बनाया जाता है, और ये बहुत सिंपल सा है, जब आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो इजीली ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा है कि कैस्केड जीरो कहाँ आएगा, तो कैस्केड जीरो इस पोजीशन पे है। ये पोजीशन कौन सी है? आर पोजीशन है। कौन सी है? आर पोजीशन है, तो ऑप्शन सी हो गया डायरेक्ट, आर पोजीशन पे, ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर में ऑक्टेट के बारे में भी गिवन है, तो वहां पे बाकी जो पार्टिकल्स है उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। और स्ट्रेंजनेस यहाँ पे होती है। स्ट्रेंजनेस वैसे ये सिमेट्रिकली बनना चाहिए था, बट एनी हाउस उन्होंने जैसे भी क्वेश्चन में गिवन है, तो एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू -1, एस इक्वल टू -2, एस इक्वल टू -3। जो ओमेगा होता है ये एस इक्वल टू -3 होता है, इसका स्ट्रेंजनेस -3 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो, इसका स्ट्रेंजनेस -3 होता है, ठीक है। और इसका I3 कंपोनेंट 0 होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओरिजिन पे शिफ्ट होना था ये सिमेट्रिकली, बट एनीवे जैसे भी गिवन है उस अकॉर्डिंग अभी तक इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। सो ऑप्शन सी विच इज आर इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपकी बैरियन डेक्यूप्लेट होती है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेंजनेस, एक्स एक्सिस पे बैरियन, सॉरी आइसोस्पिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if L, mu and R represents angular momentum, reduced mass and radial distance respectively, then L square over 2 mu R square represents, very important term in the central force problem. Question is from the classical mechanics. So central force problem में इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है जब ओवरऑल एनर्जी लिखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो L स्क्वेयर बाई 2 म्यू आर स्क्वेयर, या तो इसको सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी बोलते हैं, और या फिर इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में उन्होंने कोई भी टर्म इनमें से पूरी नहीं दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि जब आप एनर्जी लिखते हो टोटल, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/2 mr डॉट स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर बाई 2 म्यू आर स्क्वेयर प्लस VR, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में जो पहली टर्म है, दिस टर्म इज द, आप लिख भी सकते हो साथ साथ, दिस इज द रेडियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रेडियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? रेडियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहां पे लिख सकते हो एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ओके, एंड दिस टर्म इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगी? दिस इज ड्यू टू द एंगुलर मोशन, ड्यू टू द एंगुलर मोशन। जब काइनेटिक एनर्जी, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम करते तो वी इफेक्टिव लिखते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल, तो उसमें ये टर्म आती है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन, तो दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी किया गया, क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज गिवन ओनली काइनेटिक एनर्जी। जब नीचे उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल लिखा है, तो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल काइनेटिक भी लिख सकते थे या रोटेशनल काइनेटिक भी लिख सकते थे। अगर काइनेटिक बोलेंगे तो दैट इज टोटली वेग क्वेश्चन कि भाई ऐसे काइनेटिक में तो दोनों पार्ट हैं, रेडियल भी और रोटेशनल भी। तो एग्जैक्ट आंसर इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू द एंगुलर मोशन। ओके, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
this question is very very easy, I must say. That is directly about the Maxwell's equation. तो Maxwell equation तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए. Which of the following Maxwell equation represent Ampere's law with correction made by Maxwell? तो Ampere's law में हम पढ़ते थे that B dot dl is equal to mu naught I enclosed, current enclosed in the Amperian loop. लेकिन ये लो कैपेसिटर प्रॉब्लम पे फेल कर जाता है जब कैपेसिटर के डिफरेंट रीजन्स में हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं. सो मैक्सवेल मेड दिस करेक्शन यूटिलाइजिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट एंड द मॉडिफाइड इक्वेशन बिकम्स, इसको कैसे लिख सकते थे, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे. ये इसकी कर्ल फॉर्म है जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं, ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये एम्पेयर्स लॉ है. तो एम्पेयर्स लॉ कैसे मॉडिफाई हुआ, दैट डेल क्रॉस बी is equal to mu naught j plus mu naught epsilon naught curly E by curly T. Means time varying electric field produces magnetic field. Time varying electric field produces magnetic field. तो ये इक्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी. तो वहां से आप देख सकते हो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द इक्वेशन, modified equation by Maxwell, or using this equation the problem of the capacitor is resolved. So this equation is very important. और ये जो displacement current जो है बाद में, this is the displacement term quantity which was added by the Maxwell. So option D इसका correct option है, option D. Okay, option D is the correct answer. So next question is again from the electromagnetic theory आप कह सकते हो, या simply ऑप्टिक्स से समझ सकते हो, जैसे भी इसको समझना चाहो. ए ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव कंसीडर करते हैं, उसमें ये डिस्कशन हम करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी मैंने इंक्लूड किया है. सो ए ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 2 मीटर, वेवलेंथ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज is propagating in a string in the negative x direction. In the negative x direction the expression for the wave is. क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दी हुई है. देखो नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही हो या पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव वाई में या पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव जेड में या पॉजिटिव जेड में, इसको कैसे देखते हैं. पहले मैं एक जनरल एक्सप्रेशन आपको बताता हूं, उसके बाद देखना अगर आपको ये आता हुआ, जो कि सबसे बेसिक है जब भी हम ईएम वेव का डिस्कशन करते हैं. तो देखो wave equation is simply given by magnitude A cos kz minus omega t plus delta. ये होता है, ठीक है. यहाँ पे डेल्टा 0 है, कोई भी अलग से फेज डिफरेंस के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया हुआ है. तो यहाँ पे हम सिंपली इसको लिखते हैं, दैट इज A cos kz minus omega t, दैट इज yxt. ओके, नाउ सी ये कैसे पहचान करें किसी भी क्वेश्चन में कि उसकी वेव कैसे लिखी जानी है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है नेगेटिव में. इसका क्या मतलब है, के जेड, ये जर्नल फॉर्म जब लिखते हैं तो के डॉट आर कैप आर वेक्टर लिखते हैं, तो ये वहां से इसका मतलब है कि वेव जो है जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. ठीक है, इसका जो जर्नल एक्सप्रेशन होता है वो के डॉट आर माइनस ओमेगा टी आता है. तो उस के डॉट आर में देखो जैसे के जेड कैप डॉट सारे आएंगे जेड जेड कैप, तो वहां से के जेड बच जाता है. ठीक है, तो इसमें अभी नहीं जाएंगे, सिंपली मान के चल रहे हैं कि वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. अभी नेगेटिव जेड में हो, इसकी क्या पहचान है, देखो ये चीज नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. के जेड माइनस ओमेगा टी लिखा हो या ओमेगा टी माइनस के जेड लिखा हो, ऐसा जब भी लिखा होगा तो हमेशा जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होगी, पॉजिटिव जेड में. और या फिर के जेड प्लस ओमेगा टी हो, या फिर माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी हो, उस केस में नेगेटिव जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है. ठीक है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है. ठीक है, अब देखो के जेड माइनस ओमेगा टी, तो के जेड माइनस ओमेगा टी थी तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हो गई. अब हमें क्या दिया हुआ है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है,
के और ओमेगा के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए, एम्पलीट्यूड 2 है तो ए की वैल्यू तो पता चल गई कि 2 है। के का क्या रिलेशन होता है, के इज नथिंग बट 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 0.5 है तो लैम्डा इज 5 इंटू 10, तो दैट इज सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा, तो 5 बाई 10 दैट इज 4 पाई। के की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई हो गई है। और ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई न्यू, तो न्यू इज 1 हर्ट्ज दैट इज 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, तो वाई एक्स टी कैसे लिखेंगे अब नाउ, इट इज सिंपली 2 टाइम्स कॉस ऑफ के, के इज 4 पाई, 4 पाई एक्स में ट्रेवल करी तो एक्स, अब देखो नेगेटिव एक्स में कर रही तो नेगेटिव एक्स में कैसे लिखोगे, या तो दोनों नेगेटिव के या दोनों पॉजिटिव के, तो दोनों नेगेटिव के दिए नहीं, दोनों पॉजिटिव के दिए हैं, तो इसका मतलब 4 पाई एक्स प्लस 2 पाई टी, ये आपका वाई आ गया। देखो डायरेक्ट ये जो मैंने बताया है ना आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके ईएम वेव्स में बहुत काम आएगा, ईएम वेव्स में बहुत काम आएगा ये देखने में कि वेव किधर ट्रेवल कर रही है। तो डायरेक्टली जैसे उसने बोला नेगेटिव एक्स में है तो हमने इसमें पिक नहीं किया, हमने इनमें से पिक कर लिया के जेड प्लस ओमेगा टी, तो के की वैल्यू 2 4 पाई और जेड इज व्हाट एक्स यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव एक्स में है। प्लस क्यों लिया, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स में जा रही थी तो इसको फॉलो किया। ओमेगा इज 2 पाई न्यू, म्यू की वैल्यू 1 है ऐसा यूनिट में, दैट इज 2 पाई इंटू टी। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2 cos 4 पाई एक्स प्लस 2 पाई टी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is from the classical mechanics, potential energy of a particle under the force is this one, u is equal to टू एक्स फोर plus 3x square. The force acting on the particle is very easy question. Force is directly given by minus curly u by curly x. That is minus बाहर है 8x cube plus 6x and it is minus 8x cube minus 6x. So option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay, so this question is very easy from the classical mechanics. Next is this question is from the optics, और यहां से क्वेश्चन देखो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछा जाए। रीड करो, ए क्वाजी मोनोक्रोमेटिक बीम of wavelength lambda illuminates Young's experiment generating a fringe pattern having a 5.6 mm separation between consecutive dark bands. If the distance between the plane containing the apertures and the plane of observation is 10 meter and if the two sources S1 and S2 are separated by 1 mm, what is the wavelength of light? देखने में बहुत कुछ है लेकिन करने में बहुत आसान है। क्वेश्चन है यंग्स इंटरफेरेंस पैटर्न से, ठीक है। तो यंग्स इंटरफेरेंस पैटर्न में यू नो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ये लिख भी लीजिए, ये फिर पूछा जाएगा कभी ना कभी। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस are equally spaced, are equally spaced. Okay, the distance between two consecutive dark or bright fringes is given by, ये फॉर्मूला है आपका, क्या होता है, दैट इज गिवन बाय बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। डी क्या है, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 सोर्स, डी इज द डिस्टेंस
between source to the screen or the source to the observer or observation point, and beta is simply the distance between two consecutive fringes. ये हमने लिख दिया. अब देखो क्या क्या गिवन है हमें भाई. S1 S2 सेपरेटेड है 1 mm से, तो दैट इज D is given by 1.0 mm. Plane of observation is 10 meter, so D is equal to 10 meter. And the next thing is the fringe pattern के बीच में जो separation है consecutive dark bands के बीच में, that is given by beta which is 5.6 mm. आपको कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा. देखो चार चीजों में से तीन दे दी हैं, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू बीटा डी बाई डी. बीटा डी बाई डी. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो लैम्डा इज इक्वल टू बीटा, दैट इज 5.6 इंटू 10⁻³ इंटू डी, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ and divide by d, that is 10. Okay, so it will be 5.6 into 10⁻⁷, and it will be 560 nanometer. 560 nanometer, which is, I think, option C is there. Yes. So option C is the correct answer for this. Okay, 560 nanometer. यहां से आएगा. तो ये क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत कुछ था, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस, यंग इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड. उनके बीच का जो डिफरेंस है, चाहे दो ब्राइट हो चाहे दो डार्क हो, लैम्डा डी बाई डी होता है. बाकी सब चीज़ें गिवन थी, लैम्डा कैलकुलेट करना था. इसी बार लैम्डा दे देता है, बीटा कैलकुलेट करा लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the number of different ways of arranging 6 bosons in 4-phase space cell is very easy question. Number of ways in bosons is given by Ni plus Gi minus 1 factorial divided by Ni factorial Gi minus 1 factorial, and this is the product sign. Okay, so यहाँ पे तो चीज़ें बहुत आसान हैं. That is 6 number of particles and the 4 are the phase space cells which can accommodate them. So 6 plus 4 minus 1 factorial divided by 6 factorial divided by 3 factorial. So it will be 9 factorial divided by 6 factorial into 3 factorial. So 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 3 into 2 into 1. तो 6 से 6 चला जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 3 हो जाएगा. तो 12 इंटू 7, दैट इज 84 वेज. 84 वेज. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी करेक्ट. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अगेन एक सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट फिजिक्स and same Bragg's law से. X-rays of wavelength lambda equal to A is reflected from 1, 1, 1 plane of simple cubic lattice. If lattice constant is A, the corresponding Bragg angle is. Let's solve this. So again, n lambda is equal to 2d sin theta. This time we have to calculate the value of theta. d जो है वो हमें कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम लेटिस कांस्टेंट a एंड द HKL. सो HKL की वैल्यू यहाँ पे है 111. ओके, सो d इज नथिंग बट a बाई h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस. सो इट इज a बाई √3. नाउ d की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, तो क्या मुश्किल है भाई. लैम्डा इज a,
2 into d, that is a by root 3 into sin theta. a से a चला जाएगा, sin theta is equal to root 3 by 2. So you can check now, theta is equal to 60 degree, which means it is pi by 3. Okay, so option D. Option D is the correct answer to this, pi by 3. Okay, so देखो ब्रैग एंगल से, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन से दो क्वेश्चन सेम पेपर में पूछे गए हैं और सिंपल पैटर्न पे, एक बार थीटा दे दिया है, एक बार थीटा कैलकुलेट करा दिया है. This question is from the quantum mechanics, basics of the quantum mechanics again. One liner question. The wave function of a quantum mechanical particle is given by psi x is equal to 3 by 5 phi 1x plus 4 by 5 phi 2x, where phi 1x and phi 2x are the eigen functions with corresponding energy eigenvalues, minus 1 electron volt for this one and minus 2 electron volt for this one. The energy of the particle in the state psi is given by, direct आप इसको कर सकते हैं, energy is given by probability of E1 into the eigenvalue of E1 plus probability of E2 into the eigenvalue of E2. So now see, normalized है, so it will be 9 by 25, इसका स्क्वायर हो जाता है ना प्रोबेबिलिटी में, into E1 that is minus 1 इसकी आइगन वैल्यू, प्लस 16 by 25 into minus 2, so that is minus 9 by 25 minus 32 by 25, answer is minus 41 by 25. देखो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक में ये पढ़ा जाता है. minus 41 by 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Okay. Next question, see. Again, a replicative question from the thermodynamics. Let's check it. देखो. In a gas, the relative magnitude of the most probable speed Vp, the average speed V bar, एंड द रूट मीन स्क्वेयर वी आर एम एस स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल आर. देखो जब कोई भी डायमेंशन की बात नहीं की गई है तो वहां पे 3 डायमेंशनल का केस लेना होता है. ठीक है, जब कोई भी डायमेंशन स्पेसिफिकली नहीं गिवन हो तो हम उसमें 3D का केस लेंगे. तो 3D में हम सेम डिस्कशन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. फिर से एक बार लिख लेते हैं कि एवरेज वी की वैल्यू होती है 8 kT ओवर पाई एम, VRMS होता है रूट मीन स्क्वेयर दैट इज 3 kT बाई m अंडर द रूट, एंड V मोस्ट प्रोबेबल इज 2 kT बाई m. हमसे बस ये पूछा कि कौन सी ज़्यादा होती है कौन सी कम होती है. तो देखो kT बाई m तो सभी में है, अंडर रूट kT बाई m तो सभी में है, तो उससे बोदर नहीं करना है. इट इज़ समथिंग 8/3.14, और यहाँ पे कुछ है जो कॉमन है, और ये है रूट 3 इंटू समथिंग जो कि कॉमन है, और ये है रूट 2 इंटू समथिंग जो कि कॉमन है. तो इसी हिसाब से हम यहाँ से देखो रूट 2 कितना होता है, इट विल बी समथिंग 1.41. रूट 3 कितना होगा, इट विल बी 1.73. और यहाँ पे देखो 8 डिवाइड बाई 3.14, तो इसका मतलब अगर 8 को हम यहाँ पे अगर देखो रूट 3 आना होता, अब 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 3 इंटू 3 पे तो जा नहीं रहा है, 2 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, तो इट इज नियरली 2.54. ओके, मतलब 3 पे पूरा नहीं जाएगा और 2 से ज़्यादा जाएगा, 2.5 के आसपास जाएगा. आप चाहे भले ही 5-4 कैलकुलेट मत करिए, लेकिन आपको एक अंदाजा हो गया है कि 2 से तो रूट 2 से ऊपर जाएगा और रूट 3 से कम रहेगा. तो 2.54 है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा. तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, VRMS. सो VRMS आफ्टर दैट 2.5, तो इससे ऊपर 2 से ऊपर है, तो इट इज एवरेज V, एंड देन V मोस्ट प्रोबेबल.
ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे, वी आर एम एस ग्रेटर देन एवरेज वी ग्रेटर देन वीपी, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये ऐसे देखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको एक स्मार्टली थोड़ा सा चेक करना है कि √2 यहाँ है, √3 यहाँ है, ये 2 से छोटा नहीं होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कहीं बीच में आएगा। ओके, सो ऑप्शन ए। देखो सेम तरह के क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं इसमें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, जब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, 3D 2D, सिमिलरली एनर्जी के केसेस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। कंसीडर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम as water boil at a temperature of 100 degrees Celsius under a pressure of 1 atmosphere. Which one of the following quantities does not change discontinuously at the transition? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजिशन कौन से टाइप का है, ये ट्रांजिशन कौन से टाइप का है। तो देखो जब भी सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी कोई फेज ट्रांजिशन होता है तो वो और कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हमने कहा कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एस पी टी वी, तो हमने कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर दे विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे तब जो फेज डिफरेंस हो, फेज ट्रांजिशन हो। देखो ऐसे ट्रांजिशन जैसे 0 डिग्री पे आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होती है, 0 डिग्री आइस टू वाटर, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर, ये कौन सा फेज ट्रांजिशन कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली 100 डिग्री पर वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू करता है, लिक्विड ट्रांजिशन से स्टीम में जाता है, तो वाटर टू गैस, उस केस में भी आप सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे, तो ये भी क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो ऐसे फेज ट्रांजिशन जिनमें प्रेशर टेम्परेचर सेम रहे और फिर भी फेज ट्रांजिशन हो जाए वो कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यूअस रहता? देखो dg, G is the Gibbs function that is given by VdP minus SdT। ये मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट फिर भी एक बार समझाने के लिए देखो dP और dt दोनों जीरो हो जाएंगे, तो dg इज जीरो, चेंज इन g इज जीरो, इज मीन्स g इज कांस्टेंट। तो जो गिब्स फंक्शन होता है दैट रिमेन्स कंटिन्यूअस, गिब्स फ्री एनर्जी जो है दैट विल रिमेन कंटिन्यूअस। सो ऑप्शन ए आएगा इसका, गिब्स फ्री एनर्जी। और इसको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब देखते हैं इसका तब हमें डिसकंटिन्यूटी नजर आती है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पहले डिसकंटिन्यूटी नजर आती है, उससे पहले कॉन्टिन्यूअस होता है सिस्टम। तो गिब्स फ्री एनर्जी है वो दोनों फेजेस में कांस्टेंट होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, इवन CSIR नेट के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था बहुत पहले, तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और फर्स्ट ऑर्डर वो होते हैं जो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे फेज ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। एंट्रोपी हुई, वॉल्यूम हो, दीज शो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज एंड स्पेसिफिक हीट एज वेल इन द फेज ट्रांजिशन। ओके, तो ये अभी यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन तक रहते हैं। ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का है और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो सबसे फेज ट्रांजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ही है, वहीं से ज्यादा पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई वहां से आता है हर एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere of mass m and radius a is rolling with a linear speed v without slipping. The magnitude of angular momentum of the sphere on surface is. Okay,
ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, radius a, is rolling with a linear speed v on a flat surface without slipping. So it is rolling without slipping. उसका केस है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, उसके में जरूरत नहीं पड़ेगी. हमसे आसान चीज पूछी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑन द स्फीयर क्या होगा. तो देखो, एंगुलर मोमेंटम L इज गिवन बाई L ट्रांसलेशनल प्लस L रोटेशनल. इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो समझने के लिए. Okay, so it is rolling without slipping. So L translational plus L rotational. So it is simply MVR. So MV into A is the radius. R की जगह A हो जाएगा. L rotational, that is I omega. It is MVA plus I. I for this solid sphere is 2 by 5 mr square. So m is the same mass and it is a square. And omega, तो v is equal to omega into r होता है, तो omega is nothing but v by r. R is a, so it is v by a. a से a चला जाएगा. So it is 1 plus 2 by 5 mva and it is equal to 7 by 5 mva. So option B is the correct answer. Option B. Okay, 7 by 5 MVA. Next question is again from the thermodynamics and the statistical mechanics. This question is a previous year question from the CSIR NET. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले. तो जो CSIR NET और IIT गेट के क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली 2017 से पहले, 2018 से पहले के जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में डाले जाते हैं. ठीक है, नेट के भी और गेट के भी, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो 1 या 2 स्टेप में सोल्व होने वाले हैं. इससे ज़्यादा लेवल के नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन वहाँ से डाले जाते हैं. ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से है. द इंटरनल एनर्जी ई ऑफ ए सिस्टम is given by internal energy E is given by E is equal to Bs cube over Vn, where B is a constant and other symbols have their usual meaning. S entropy है, V volume है. The temperature of the system पूछा, देखो E दिया हुआ है, टेम्परेचर पूछा सिंपली. तो ऐसी सिचुएशन में जब भी थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो पहले तो जो लॉज आपको पता है, जो रिलेशंस आपको पता है, सबसे पहले वो लिख लीजिए. अब आपको पता है कि TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV. du इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी और द DE. तो आपको चाहिए T, टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज नथिंग बट करली U बाई करली S एट कॉन्स्टेंट V. तो सेम कॉन्सेप्ट तो हम पहले भी लगाए थे जब हमने 1 बाई KT इज इक्वल टू करली बाई करली E ln ओमेगा वाला क्वेश्चन किया था. तो इट इज करली बाई करली S E एट V. अब इसको सोल्व कर लो तो S के रूप में T इज इक्वल टू 3bs square over Vn. So this is the temperature, 3bs square upon Vn. So option B is the correct answer. थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन की ये पहचान होती है कि आपको एक टर्म से दूसरी टर्म की तरफ जाना होता है, लेकिन अगर उसमें डर लगने लगता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो सबसे बेटर यही होता है पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, सेकंड लॉ ऑफ लिखो, स्पेसिफिक हीट वगैरह कुछ का क्वेश्चन है तो उसके फॉर्मूलाज लिखो. आपको तुरंत एक रूट मिल जाएगा कि कौन से फॉर्मूला को यूज करके हमने क्या सोल्व करना है. बस अब यहाँ पे देखो, हमें भी नहीं पता कि टेम्परेचर शुरू में क्या करना है, लेकिन जैसे ही आपने लिखा TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, तो आपको पता चल गया कि अगर एनर्जी को एंट्रोपी के साथ कर दें तो टेम्परेचर आ जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और आपका आंसर आ गया. तो ऐसे ध्यान रखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम, सो इट इज 1.55. ये क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछे नहीं जाने चाहिए एग्जाम्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं. इनको क्या याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने मटेरियल्स का कोई ध्यान रखे. ऐसे ही आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हो, कल को परमिटिविटी पूछ लो, कल को कोई
पोलराइजेबिलिटी पूछो तो इतने मटेरियल्स को ध्यान रखना थोड़ा टफ होता है। तो ये तो क्वेश्चन या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तो आता है या नहीं आता है। ओके, सो ऑप्शन इज बी, दैट इज 1.55। तो ये तो लक बाई चांस वाला क्वेश्चन है कि अगर किसी को याद हो तो कोई कर सकता है, अदरवाइज इतने मटेरियल्स हैं आप किसका याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। When an EM wave propagating in free space is incident on dielectric substrate of electric permittivity epsilon r equal to 3, what should be the angle of incidence for not having any reflection? For not having any reflection। देखो भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है और पूछा है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नॉट हैविंग एनी रिफ्लेक्शन, की कोई भी रिफ्लेक्शन ना मिले। ये केस बन जाता है ब्रूवेस्टर एंगल का, ब्रूवेस्टर एंगल। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ब्रूवेस्टर एंगल बच्चे निकाल सकते हैं यहां से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर से स्टेटमेंट वेग है। ये नहीं बताया गया है कि जो ईएम वेव आ रही है वो किस प्लेन में पोलराइज्ड है। अब जनरली होता क्या है ब्रूवेस्टर एंगल में, मैं आपको बताता हूं। देखो, ब्रूवेस्टर एंगल डिफाइन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक इंटरफेस है और ये इसका एक नॉर्मल आपने ले लिया है, ठीक है। ये एक इंटरफेस मान लो। अब यहां से एनी वेव इज इंसिडेंटिंग एट थीटा, दिस एंगल इज से थम थीटा आई। तो some part of the wave will be reflected back in the same medium and some part will be transmitted in the another medium. Say this medium is number 1, this medium is number 2. Okay, तो ये वेव जो है ये फ्री स्पेस से और एक डाइलेक्ट्रिक की तरफ आ रही है। इसका एप्सिलॉन r 3 है, इसका एप्सिलॉन r 3 है और वो फ्री स्पेस है। अब ब्रूवेस्टर एंगल क्या कहता है कि अगर देखो, पहले यहां पे एक सिंपल वेव समझो कि अगर ये एक अनपोलराइज्ड वेव है, अगर ये एक अनपोलराइज्ड वेव है, अनपोलराइज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हैं इस वेव के अंदर, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेव आर चेंजिंग इन ए वेरी फास्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ब्रूवेस्टर एंगल क्या कहता है कि एक इंटरफेस पे एक ब्रूवेस्टर एंगल बनता है जब 1 से 2 में जा रही हो, और उस ब्रूवेस्टर एंगल पर अगर वेव ने हिट किया तो जो भी कंपोनेंट प्लेन ऑफ इंसिडेंस में होंगे वो रिफ्लेक्टेड वेव में से कैंसिल हो जाएंगे। प्लेन ऑफ इंसिडेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जब अनपोलराइज में तो सब कुछ था, प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाले भी थे और उसके परपेंडिकुलर भी थे। तो उस केस में जो परपेंडिकुलर वाले थे सिर्फ वो बच गए, जो प्लेन के अंदर थे वो कैंसिल हो गए। तो इस केस में वेव बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड वेव क्या बन जाती है? प्लेन पोलराइज बन जाती है जब अनपोलराइज लाइट आती है। तो या फिर अब इस केस में उनको बताना चाहिए था कि वेव जो है वो कैसे आ रही है, कि वेव अगर तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है, अगर तो पूरी वेव जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है, उसमें कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, तो ब्रूवेस्टर एंगल की तो कहानी इतनी है कि जो भी उसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस में कंपोनेंट दिखा उसको वो कैंसिल करेगा। तो अगर सिर्फ प्लेन ऑफ इंसिडेंस में कंपोनेंट होते, ये चीज उनको डिफाइन करनी थी, तब हमारा क्वेश्चन सही बनता। फिर हम कहते कि इस एंगल पे अगर ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाली वेव हिट कर गई तो रिफ्लेक्टेड में कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे कैंसिल कर देगा ब्रूवेस्टर एंगल। ये थी कहानी, लेकिन यहां पे इन्होंने वो बताई नहीं, इसीलिए शायद ये ड्रॉप हुआ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो इसको कैसे करते? तो देखो, टेंजेंट थीटा बी, ब्रूवेस्टर एंगल डिफाइन होता है जब 1 से 2 में जाते हैं तो n2 बाई n1, n2 बाई n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाई फर्स्ट। तो इट इज एप्सिलॉन r2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन r1। सो एप्सिलॉन r2 is √3 डिवाइड बाई 1 एंड थीटा p इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इसका बनना चाहिए था ऑप्शन, दैट इज द केस। ओके, तो ब्रूवेस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान ये रखना होता है कि जब भी अनपोलराइज लाइट आएगी तो ब्रूवेस्टर एंगल पे हिट करके हमेशा एक प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। जब भी लाइट प्लेन ऑफ इंसिडेंस में आएगी तो यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, नो लाइट। इस ब्रूवेस्टर एंगल को दिक्कत है उन कंपोनेंट से जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में लाई करते हैं,
ये बात ध्यान रखिए, इसको दिक्कत उन्हीं से है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस वालों से, बाकी सबको छोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ब्रेवियस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से है, जब एक ईएम वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। यहाँ पे एयर मीडियम था तो एप्सिलॉन R1 वाज इक्वल टू 1 और ये एप्सिलॉन R जो था इसका वो 3 था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the values of A, B and C such that the vector field F equal to 4xy plus az cube I cap plus bx square plus 3z j cap plus 6xz square plus cy is irrotational। वेरी इजी क्वेश्चन, पूरे वेक्टर एनालिसिस में यही तो हमने डिस्कस किया था, डिफरेंशियल कैलकुलस में खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसका इरोटेशनल है तो इरोटेशनल के लिए क्या चेक करेंगे कि डेल क्रॉस एफ जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो चेक करना है हमने, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। सो इट इज एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। एक्स कैप में क्या है, इट इज 4xy प्लस ए जेड क्यूब, यहाँ पे क्या है bx स्क्वेयर प्लस 3z, और यहाँ पे है 6xz स्क्वेयर प्लस cy। ठीक है जी, यही है। जल्दी से इसका कर्ल कैलकुलेट करते हैं, देखो कर्ल कैलकुलेट करो। सो इट विल बी एक्स कैप c माइनस 3, आप भी सोल्व करते रहिए, कर्ल सोल्व करना है, माइनस वाई कैप, तो वाई कैप में करली बाई करली एक्स करेंगे तो इट विल बी 6z स्क्वेयर एंड माइनस करली बाई करली जेड करेंगे तो 3az स्क्वेयर प्लस जेड कैप। सो जेड कैप में करेंगे एक्स के साथ तो इट विल बी 2bx, माइनस वाई के साथ करेंगे तो इट विल बी 4x इक्वल टू 0x कैप प्लस 0y कैप, क्योंकि 0 वेक्टर है ना तो कंपोनेंट ही कंपोनेंट से कंपीट करेगा। तो अगर इसको 0 होना है तो c की वैल्यू 3 होने पड़ेगी, इसको अगर 0 होना है तो 6 माइनस 3a जेड स्क्वेयर तो कॉमन चला गया 0 के बराबर, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2 होना पड़ेगा, और इसको अगर 0 होना है तो 2b माइनस 4 इंटू एक्स इज 0, 2b माइनस 4 इज 0 एंड 2b इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2। ओके, सो ऑप्शन इज 2 2 3। देखो ये रिसेंट एग्जाम में पूछा गया इरोटेशनल 2 2 3, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर फिजिक्स। Which of the following electromagnetic radiation is used in EPR spectroscopy? In EPR spectroscopy. So EPR spectroscopy means electron paramagnetic resonance. Electron paramagnetic resonance. And it is also known as ESR, electron spin resonance. Electron spin resonance. Okay, so in this case it is a method for studying material that are having unpaired electron, that are having unpaired electrons। ऐसे मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए यूज होता है। सो इसका आंसर आएगा माइक्रोवेव्स, तो रेडिएशन यूज्ड इज माइक्रोवेव रीजन, नियरली 10⁻⁴ to 10⁻⁶ megahertz। Okay, so microwave region is the correct option to this question. Okay,
So next question is from atomic and molecular physics. ओके और ये क्वेश्चन भी CSIR नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अराउंड 2015 के आसपास का. ठीक है, लेजर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज CSIR नेट का क्वेश्चन है. ये आसान है इसलिए इसमें डाल दिया गया है. तो आप देख सकते हैं कि लेवल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कोई फॉर्मूला पूछ के छोड़ देगा. 2022 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं. देयर इज ऑलवेज ए चांस कि आपसे क्वेश्चन अच्छे ही पूछे जाएंगे. एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हमेशा सिग्निफिकेंटली हायर ही होता है. ठीक है, तो नेट का क्वेश्चन है ये. इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आर गिवन बाय En is equal to minus 13.6 n square electron volt. By using a laser, if selective excitation to n equal to 100 level is to be made, the maximum allowed frequency line width of the laser is. हमें del nu कैलकुलेट करना है for n equal to 100 excitation. देखो En हमें पता है तो डेल्टा En कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा En देखो En क्या होता है, En is h nu, simply means E is equal to h nu. तो डेल्टा E is equal to h डेल्टा न्यू है ना. तो हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा न्यू, तो इट मीन्स डेल्टा E हमें चाहिएगा. सो डेल्टा En is equal to minus 13.6 and it will be 2 by n cube. 2 by n cube. यहाँ पे 1 by n square का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे तो n raised power minus 2, it will be minus 2 by n cube. So it will be 13.6 into 2 divided by n cube. ये En आ गया है. So h delta nu is equal to 13.6 into 2 divided by n cube. आपको चाहिए डेल्टा न्यू. n की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है. So delta nu is equal to 13.6 into 2 divided by h n cube. Now let's solve it. I hope आपने लिख लिया होगा. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 डिवाइड बाई n is 100, so it will be n cube, so that will be 100 power 3 into h, that is 6.626 into 10 raised power minus 34 here. Okay, and answer is in the gigahertz, so it should be multiplied with 1.6 into 10 raised power minus 19 है ना. यहाँ पे देखो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आंसर है हर्ट्ज में, तो हमें जूल में कन्वर्ट करना है. सो इट इज 1.6 into 10 raised power minus 19. तो इट विल बी 43.52 into 10 raised power minus 19 डिवाइड बाई 6.626 into 10 raised power minus 28. इसको जब सोल्व करेंगे तो इट विल बी 6.56 into 10 raised power 9 and it is nothing but 6.5 गीगाहर्ट्ज. ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है. तो 6.5 गीगाहर्ट्ज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन ए. तो आप देख सकते हो कोई कोई क्वेश्चन है वो बीच में मुश्किल है, और मुश्किल भी नहीं कहें तो एटलीस्ट टाइम टेकिंग है. ऐसे क्वेश्चंस को देखो एग्जाम में, जब भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं तो उसमें ये सोचना जरूरी है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है. अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते भी हों, लेकिन देखो टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी गलती होते ही आप आंसर से काफ़ी दूर चले जाओगे. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को तभी करें जब आपके पास इनफ टाइम हो पूरे एग्जाम को स्क्रीन आउट करने के बाद, सोल्व करने के बाद. अदरवाइज बेटर है कि इसके बजाय ऐसे क्वेश्चंस ढूंढे जाएं जो कि डायरेक्ट टिक मार्क से हो रहे हों. ठीक है, तो ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन से बचना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the coefficient of coupling in a transformer in which self-inductance of primary coil is 0.02 Henry and that of secondary is 0.18 and the mutual inductance is 0.04 H? Very straightforward question.
So coefficient of coupling K is given by M divided by root L1 L2. Okay, K is the coefficient of coupling, M is the mutual inductance, L1 and L2 are the self inductance of primary and secondary coil. So it is equal to 0.04 under the root 0.02 into 0.18. So it is 0.04 divided by 36 into 10 raised power minus 4, and it will be 4 into 10 raised power minus 2. It will be 6 into 10 raised power minus 2. So 2, 3. So it is 2 by 3 which is equal to 0.67. Okay. देखो K की जो वैल्यू होती है दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. K की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. K की वैल्यू अगर 1 है तो हम कहेंगे कि कपलिंग जो है वो काफ़ी टाइट है, कपलिंग इज़ वेरी टाइट. एंड K इज इक्वल टू अगर 0 है तो कहेंगे कि कपलिंग जो है वो लूज है. तो जनरली देखा जाता है कि K की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, इन बिटवीन कहीं आती है. तो यहाँ पे 0.67 है. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. Consider a system consisting of two particles, each of which can be in any one of three quantum states 0, E and 2E. The number of total configurations when the particle are identical bosons. सिंपल है, तीन आपको एनर्जी स्टेट्स दी गई हैं, दो पार्टिकल हैं और बोजोन्स के केस को समझना है. तो जैसा क्वेश्चन हमने किया था आप उससे भी कर सकते हो डायरेक्टली. जैसे आपने कहा था कि Ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर द प्रोडक्ट रूल. तो यहाँ पे n की वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, so it will be 2 plus 3 minus 1 factorial divide by 2 factorial, and it will be 2 factorial. So 3 plus 2 5 minus 1 4 factorial divide by 2 factorial 2 factorial. It is 4 into 3 into 2 factorial divide by 2 into 1 into 2 factorial. So 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 पे जाएगा. So 6 number of ways. Option B is the correct option. देखो एक तो इसको इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है. दूसरा क्या है कि तीन एनर्जी स्टेट्स बनाइए. फॉर एग्जांपल ये 0 स्टेट है, ये ई स्टेट है, ये 2E स्टेट है. तो बोजोन्स पे कोई कंडीशन तो होती नहीं है, बोजोन्स पे कोई कंडीशन तो होती नहीं. देखो कितने वेज बनेंगे. हो सकता है दोनों बोजोन यहाँ बैठे हों, एक तरीका. हो सकता है दोनों यहाँ बैठे हों, दूसरा तरीका. हो सकता है दोनों यहाँ बैठे हों, तीसरा तरीका. अब एक बोजोन यहाँ हो, एक यहाँ हो, चौथा तरीका. एक बोजोन यहाँ हो, एक बोजोन यहाँ हो, पांचवा तरीका. और एक बोजोन इसमें बैठा हो और एक इसमें बैठा हो, 6 तरीका. उसके अलावा कोई और तरीके नहीं है. तो 6 ऐसे निकाल लो, तो ऐसे अरेंज कर लो. ठीक है. जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ स्टेट्स कम होती हैं, 2-3 के आसपास होती हैं, तो आप ऐसे भी सोल्व करके देख सकते हो कि बोजोन्स पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि एक स्टेट में एक आ सकता है, कि दोनों आ सकते हैं, कहीं भी कितने भी आ सकते हैं बोजोन्स. तो ऐसे भी करके देख सकते हो. मैंने 6 तरीके आपके सामने वैसे भी बना दिए हैं और वैसे भी. क्वेश्चन है आइडेंटिकल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का. थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेट मैक्स में से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन बनता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. सो नेक्स्ट इज from the nuclear and particle physics, very basic question from the shell model. In the nuclear shell model, the spin parity of 7 nitrogen 15, spin parity निकालनी है शेल मॉडल के अकॉर्डिंग. वेरी बेसिक क्वेश्चन. देखो Z की वैल्यू 7 है, N 8 है, इसका मतलब तो जो अनपेयर्ड होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिन एंड पैरिटी, सो दैट विल बी 7. तो अब इसको अरेंज करेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग. ओके. सो इसको हम ट्रिक के थ्रू याद रखते हैं, अभी उसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है. सो इट विल बी 7. देखो कहाँ पे फिल होगा, 2 4 यहाँ पे आ सकते हैं, 2 यहाँ पे, एंड देन इट इज़ 6. तो देखो कहाँ पे आ रहा है, 2 + 4 6,
और 7th यहाँ पे आएगा, जो पार्टिकल है वो कहाँ पे आएगा, इस आपके ऑर्बिटल में आएगा। सो दैट इज 2j + 1 को बराबर रख दो इस 2 के मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी के, तो j इज इक्वल टू 1/2। j की वैल्यू हो गई 1/2। अब 1/2 तो पता चल गया कि ऑप्शन ए और बी में से है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव ये बताएगी पैरिटी, दैट इज एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या होती है, SPDF 0 1 2, तो p के लिए 1 होती है, तो -1 की पावर l, दैट इज -1 की पावर 1 मीन्स नेगेटिव। सो इट मीन्स पैरिटी विल बी नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव। पैरिटी ऐसे देखते हैं सेल मॉडल में, और स्पिन ऐसे देखते हैं, जहाँ पे भी लाई कर रहा है वो देख लो। ठीक है, ये पूरा पैटर्न हम एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, और फिर चाहे कैसी भी स्पिन पैरिटी पूछी हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद इन ए सिंगल स्टेप। ओके, सो 1/2 नेगेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आंसर बी। ओके, ऑप्शन बी मीन्स। नेक्स्ट इज द आइसोस्पिन एंड द स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा बेरियन। अभी हमने जब बेरियन डेक्यूप्लेट पढ़ा था उसी में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो ओमेगा के लिए यू नो स्ट्रेंजनेस इज -3 एंड आइसोस्पिन इज 0, सो -0 एंड -3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट है, जब भी हम बेरियन पढ़ेंगे, बेरियन टेबल जब समझते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है, और बेरियन डेक्यूप्लेट में भी ये आपको दिख गया होगा कि -3 एंड द आइसोस्पिन इज 0, so 0 - 3, that is option B. Okay, and the next question is this one. The ratio of magnetic dipole moment to its angular momentum is known as. ऐसे क्वेश्चंस मैग्नेटोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करिए किसी स्फेरिकल शेल का, किसी रोटेटिंग डिस्क का, एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय इट्स एंगुलर मोमेंटम, सो इट इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से मैग्नेटो जायरो इज गिवन, दैट इज ऑप्शन बी। तो आप लिख सकते हो फॉर द फ्यूचर दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम is known as मैग्नेटो जायरो और जायरोमैग्नेटिक रेशियो। Okay, so this completes the discussion on your 2022 एग्जाम। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके बताइए, आप डायरेक्टली पूछिए। ठीक है, फुल PDF with the correct answer key and the analysis of subject wise is available on the Graviton Institute app. Okay, so you can download the app and you can find out the PDF of that and video also. Okay, so in case of any doubt, please feel free to discuss. Till then, have a good time. Bye bye. Take care.